So once again, very good morning to all, and I think you all are safe. And this is our last lesson for class 3 English. Okay. The name of the lesson is the sheep of the desert. There are two characters in this story. One is lion and second is camel. Okay. In whole story, they both are talking with each other. एंड दिस स्टोरी इज डिस्कशन ऑफ लॉयन एंड कैमल. दोनों के बीच में जो डिस्कशन हुआ है वो इस स्टोरी में हमें यहाँ पर देखा. सो लेट्स स्टार्ट. लॉयन लॉयन सेड टू कैमल, हु आर यू? Lion said to camel, who are you? First he roared. We all know the sound of lion is called roar. Okay. With roaring, lion said, who are you? Camel looking down at the lion. Now camel looking down at the lion. Why he is looking down at the lion? Can you tell me? Why looking down at the lion? Why camel looking down at the lion? Yes, very good, Harshita. Because camel is tall. Okay, camel is tall and lion is short. That's why camel looking down at the lion. जाओ ना बाहर, जाओ ना बाहर. कैमल जो होता है वो टॉल होता है और लॉयन जो होता है शॉर्ट होता है. इसलिए camel looking down at the lion and he said, I am sheep of the desert. आप अपना माइक बंद कर दो या तो फिर मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा. So camel said, I am the sheep of the desert. Who are you? Then camel asked lion, who are you? Then lion said, don't you know me? I am the king of the forest. Then lion said, you don't know me. I am the king of the forest. Every animal knows me. Everyone knows that I am the king of the forest. So camel said, are you? Oh, I see. Then lion with frowning, थोड़ा सा तेवर दिखाते हुए lion बोलता है, you call yourself the sheep of the desert. How can you be a sheep? You are an animal. Lion कहता है कि तुम खुद को sheep of the animal कहते हो. You call yourself the sheep of the desert. But how can you be a sheep? You are an animal. आप तो एनिमल हो, आप sheep कैसे हो सकते हो? Then the camel said, camel with smiling, he said, so I am. I know I am animal, but people call me the sheep of the desert. तो कैमल कहता है कि हाँ मुझे पता है, आई एम एन एनिमल, आई नो, बट पीपल कॉल मी द शीप ऑफ द डेजर्ट. लेकिन जो लोग हैं वो कहते हैं मुझे शीप ऑफ द डेजर्ट, मतलब मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ. ओके, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. सो लोग कहते हैं कि आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट. आई कैन वॉक, he said, I can walk across the desert even on a hot afternoon. He said, I can walk across the desert even on a hot afternoon. मतलब कितनी भी गर्मी हो, भरी दोपहर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी मैं डेजर्ट में चल सकता हूँ. I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sand burns but it doesn't bother me. वो कहता है कि सैंड जो है वो जलती है ऐसे, जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा देर तक उसको अगर हीट देते हैं, ठीक है, जैसे हम दोपहर में हम विदाउट सैंडल्स और विदाउट चप्पल वी कैनॉट वॉक ऑन रोड.
ठीक है, आफ्टरनून में हम विदाउट सैंडल्स और विदाउट शूज हम रोड पर चल नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। द रोड इज हॉट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट वॉक। So just like that, sand is also hot, but it doesn't bother me. He said, वो सैंड हॉट होती है लेकिन उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डजेंट बॉदर मी मतलब फर्क नहीं पड़ना। सो ही सेड, कैमल सेड, सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बॉदर मी। देन लॉयन सेड, आई कांट बिलीव इट। लॉयन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आई कांट बिलीव इट, ऐसा हो ही नहीं सकता। लॉयन कहता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, इन डेजर्ट यू कैन वॉक ऑन आफ्टरनून, it's not possible. That's why lion said, I can't believe it. Then camel replied, can you walk across a desert? Then camel said, can you walk across a desert? Then lion blinking, no, I can't, but I can run in the forest. Lion कहता है कि मैं डेजर्ट में तो नहीं चल सकता, लेकिन but I can run in the forest, but I can run in the forest. देन कैमल विथ डिसडेन, मतलब वो उसका डिसडेन का मतलब होता है कि अवज्ञा पूर्वक, मतलब जैसे वो बोल रहा था ना लॉयन कि मैं तो फॉरेस्ट में चल सकता हूँ, लेकिन फिर ऐसे दिखा था कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, फॉरेस्ट में चलना कोई बड़ी बात नहीं है। सो ही सेड एवरी एनिमल कैन डू दैट। कैमल सेड एवरी एनिमल कैन रन इन द फॉरेस्ट, दैट इज नॉट डिफरेंट, आई अलोन कैन रन ऑन सैंड। ही सेड आई अलोन कैन रन एंड सैंड। अलोन मतलब अकेला, लेकिन मैं अकेला ऐसा हूं कि जो सैंड पर भाग सकता है। ठीक है, कोई भी सैंड पर ऐसे रन नहीं कर सकता। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। ही सेड आई कैन रन ऑन सैंड 25 किलोमीटर्स एन आवर। मैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर्स तक, 1 घंटे में मैं 25 किलोमीटर्स तक सैंड पर रनिंग कर सकता हूँ, मतलब मैं 25 किलोमीटर्स तक 1 घंटे में जा सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने रेगिस्तान देखा होगा, अगर वहाँ पर रेगिस्तान में चलने की कोशिश करें तो हमें डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हमारे पैर जो है वो उस रेत में धंस जाते हैं। ठीक है, आपके आसपास जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होगा, फिर वहाँ पर वो बालू जो होती है, रेत वहाँ पर डाली होगी, फिर आपने वहाँ पर उस पर चलने की अगर कोशिश आप करते हैं तो आपके पैर क्या होते हैं, वो रेत के अंदर, हम जल्दी जल्दी नहीं चल पाते। लेकिन कैमल जो है, कैमल कैन रन ऑन सैंड 25 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर्स तक सैंड पर चल सकता है। देन लॉयन वॉन्डरिंगली ही सेड, हाउ कैन यू डू दैट। तो लॉयन को भी अभी थोड़ा सा उसमें ऐसा वॉन्डर, मतलब उसको उत्सुकता लग जाती है कि अरे यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब जिस सैंड पर हम थोड़ा भी नहीं चल पाते, ये 1 घंटे में 25 किलोमीटर तक चल जाता है। तो लॉयन को भी थोड़ा सा अजीब लगने लगा भी, उसको और जानने की इच्छा हुई कि ऐसे कैसे होता है। सो दैट्स व्हाई ही आस्क्ड, हाउ कैन यू डू दैट। देन कैमल सेड, लुक एट माय फीट, दे आर थिक पैडेड। तो वो अपने पैर उसको दिखाता है, पंजे उसको दिखाता है, वो कहता है कि माय फीट आर थिक एंड पैडेड, मतलब वो जैसे मोटे मोटे है और पैडेड है। पैडेड मतलब ये दिख रहा है जैसे ये लॉयन का दिख रहा है, छोटा सा जैसा, ये गद्दे जैसा। लास्ट पोएम में हमने डिस्कस किया था पैडेड मतलब गद्देदार, सॉफ्ट। ओके, सो कैमल सेड माय फीट्स आर थिक एंड पैडेड, द हॉट सन डज नॉट बर्न देम। वो कहता है कि द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, जो सन है जो कितना भी हॉट हो जाए वो उनको जला नहीं सकता है।
Then lion said, my feet are padded too. तो lion कहता है कि मेरे भी तो feet padded है. जैसे कैमल ने कहा ना कि मेरे जो फीट्स है वो थिक एंड पैडेड है इसलिए मैं चल पाता हूँ. तो लायन कहता है कि मेरे भी तो padded है, लेकिन मैं चल नहीं सकता सैंड में इतना. He said, thorns don't prick them. थॉर्न्स कांटे. ओके, प्रिक मतलब चुभना. वो कहता है कि थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर. सो लायन सेड, माय फीट्स आर आल्सो पैडेड. इवन थॉर्न्स डोंट प्रिक मतलब उनमें कांटे भी चुभ नहीं सकते. जो कांटे जो होते हैं ना भी उसमें चुभ नहीं सकते. एंड आई कैन 80 किलोमीटर्स एन आवर मतलब मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स तक जा सकता हूँ. कि उसकी जो स्पीड है किसकी, लायन की, 80 किलोमीटर्स पर आवर है. वो कहता है कि मैं 1 घंटे में अगर मैं रनिंग स्टार्ट करूँ तो 80 किलोमीटर तक मैं भाग सकता हूँ. देन कैमल सेड, दैट इज ट्रू. आप जो कह रहे हैं वो तो सही है. दैट इज ट्रू, यू कैन रन 80 किलोमीटर्स पर आवर. योर फीट्स आर ऑल्सो, इवन थ्रोन्स डोंट प्रिक देम. बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हार्ड सैंड. लेकिन वो कैमल पूछता है कि ये तो चलो ठीक है कि 80 किलोमीटर तक आप भाग सकते हो, 1 आवर में आपकी स्पीड है कि आप 80 किलोमीटर 1 घंटे में चले जाते हो, लेकिन क्या आप 1 माइल भी चल सकते हो हॉट सैंड पर, जो ऐसे गर्म रेत होती है रेगिस्तान में, उस पर आप चल सकते हो. देन लॉयन सेड, मे बी नॉट. लॉयन सेड, मे बी नॉट. Then camel said, and you can't live without a water for a week. Can you? कैमल उसको बीच में रोकता और कहता है कि चलो ये तो चलो ठीक है चलना, लेकिन कैन यू कांट लिव विदाउट अ वाटर फॉर अ वीक मतलब 1 वीक तक मतलब पूरा हफ्ते तक बिना वाटर के रह सकते हो. देन लायन सेड, नो आई कांट. वो कहता है कि 1 वीक तक तो मैं रह ही नहीं सकता. आई नीड वाटर एवरी डे. एवरी डे आई नीड वाटर. बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर. तो लायन कहता है कि चलो ये तो मुझे हर दिन पानी चाहिए होता, लेकिन ऐसा मत कहना कि तुम्हें बिना पानी के भी आप रह सकते हो ऐसा. तो कैमल सेड, यस आई कैन. देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट. ही सेड, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट. रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं होता है. बट दैट डज नॉट बॉदर मी. लेकिन उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. Because I can drink 200 bottles of water at a time. वो कहता है कि at a time I can drink 200 bottles of water. अगर हम ट्राई करें तो हम आधी बॉटल तक पी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बॉटल हम पानी पी सकते हैं. लेकिन कैमल जो है वो कितने बॉटल्स पी सकता है, 200 बॉटल्स. दीज आर टू मेनी. 200 बॉटल्स मतलब बहुत सारा पानी वो एक बार में पी सकता है. लॉयन से, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक. तो लॉयन कहता है कि एक, तो फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा स्टमक जो है, तुम्हारा पेट जो है वो बड़ा ही होगा, इसीलिए तुम एक बार में 200 बॉटल्स पी सकते हो. सो कैमल प्राउडली सेड. तो कैमल को थोड़ा सा ऐसा प्राउड फील होता है कि हाँ, यस आई हैव अ बिग स्टमक. Then camel said, I have a big stomach. I can store water for a week. वो कहता है कि मेरे पेट में मैं वाटर 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकता हूँ. आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन. इतना ही नहीं, वो कहता है कि मैं तो 2 हफ्ते तक फूड भी मैं अपने बॉडी में स्टोर कर सकता हूँ. मतलब वाटर तो मैं 1 हफ्ते के लिए स्टोर करता हूँ अपने स्टमक में, लेकिन मैं 2 हफ्ते तक मतलब 2 वीक्स तक, 2 हफ्ते तक मैं
जो फूड है खाना वो भी मैं स्टोर कर सकता हूँ। देन लॉयन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, तो लॉयन को बहुत इंटरेस्ट आने लगता है कि यार यार ये ऐसा कैसा है, ये तो पानी भी स्टोर कर रहा है और ये तो खाना भी स्टोर करके रख सकता हूँ। तो लॉयन आस्क, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक? तो फिर लॉयन पूछता है उसको इंटरेस्ट से कि क्या तुम, जैसे पानी तुम स्टोर करते हो अपने स्टमक में, तो खाना भी अपने स्टमक में ही स्टोर कर लेते हो? मतलब स्टोर करना मतलब जमा करके रखना, ठीक है। सो कैमल सेड, नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प। देन लॉयन सेड, आई स्टोर फूड इन माई हम्प। अभी ये हम्प क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा भी आपको लॉयन का पिक्चर दिखाता हूँ, लॉयन एंड कैमल का, तो उसमें आपको हम्प क्या होता है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसके पीठ के ऊपर, ओके, दिस इज कॉल्ड हम्प। जिन लोगों ने रियल में, यस सर दिख रहा है। तो उनको प्रॉपरली उसको, यस दिख रहा है। ओके, सो दैट पार्ट इज कॉल्ड हम्प। क्रैक। तो उसमें वो अपना फूड जो है वो स्टोर करता है। ये कौन है? अरे बेटा ये क्यों किया आपने, बंद करो उसको। नहीं आ रही है। अरे बेटा बीच में आप लोग शेयर करना चालू कर देते हो। Camel said, no, I don't. I not store in my stomach. I store food in my hump. I eat a lot of food at one time. I eat a lot of food at one time. Then I don't need to eat for a fortnight. वो कहता है कि मैं एक बार में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ, जिससे कि मुझे बहुत दिनों तक, बहुत रात तक मैं खाना नहीं खाता हूँ, ठीक है। सो लॉयन सेड, दैट्स इंटरेस्टिंग। लॉयन सेड, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आप मतलब खाना भी स्टोर कर लेते हो, पानी भी स्टोर कर लेते हो अपने बॉडी में। बट वॉट डू यू ईट? तो लॉयन पूछता है कि ये तो ठीक है, लेकिन आप खाना क्या खाते हो? सो कैमल सेड, आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट। वो कहता है कि मैं तो लीव्स खाता हूँ, लेकिन डेजर्ट में तो ट्रीज बहुत कम होते हैं। सो लॉयन आस्क्ड, व्हाट डू यू ईट देयर? सो कैमल सेड, देयर आर thorny bushes in the desert. I eat the thorns. The thorns don't prick my thick tongue. तो वो कहता है कि ये जो कांटे वाले जो छोटे से जो पेड़ होते हैं ना, ये तो मैं ये खाता हूँ। मतलब मैं ये जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो मैं खाता हूँ, और मेरी जो टंग है, मेरी जो जीभ है, टंग है, वो बहुत मोटी है, ठीक है। आई हैव अ थिक टंग, सो दैट थॉर्न्स जो है वो कांटे जो है, जस्ट लाइक कैक्टस जो है, वो भी मुझे चुभते नहीं है। जैसे अगर हम कैक्टस खाने की कोशिश करें तो हमारे टंग में वो सारे फंस जाएंगे कांटे, लेकिन वो कहता है कि मेरी टंग इतनी मोटी होती है, थिक होती है, कि जिस वजह से वो कांटे भी मुझे चुभते नहीं है। सो लॉयन सेड, हाउ फनी। देन कैमल सेड, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट। तो कैमल क्या कहता है उसे कि चलो मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यू कम विथ मी इन द डेजर्ट। वो उसे बुलाता है कि चलो मेरे साथ डेजर्ट में चलो। द लायन सेड, नो, आई हैड बेटर नॉट। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, एंड आई कांट ईट थॉर्न्स। गुड बाय एंड तक मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट। तो लॉयन कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे सैंड पर नहीं चल सकता।
आई कांट स्टोर फूड, मैं खाना जमा करके नहीं रख सकता, मैं वाटर जमा करके नहीं रख सकता, और तो और मैं कांटे वाले प्लांट्स भी नहीं खा सकता. So, goodbye, the sheep of the desert. I am very well in the desert. I am very well. You enjoy in your desert. Okay, so I think you all have understand this story. This very short and interesting story is this. Okay, so let's have some question answers. चलो 5 मिनट में सब लोग क्वेश्चन आंसर फटाफट बोलेंगे अभी. Why is the camel called the sheep of the desert? Why the camel is called the sheep of? वो डेजर्ट में चल सकता है Okay, if you can, उसके पैर then very good. आप live in desert. okay, camel can walk in desert. Yes, sir. Any other? Yes, sir. Okay, then next one. For how many weeks can a camel stay सर जैसे in its hump? No, I. Okay, then at a time a camel can drink. At a time a camel can drink. Camel can 200 bottles. 200 bottles of water. Okay. Then next one, a camel stores in its food in its food कहाँ पे store करता हूँ? They are asking us food. Stomach. Food. Stomach is wrong answer. Camel store its food in hump. Okay, stomach में वो सिर्फ पानी store करता है. In stomach it stores water only. Camel can store its food in its hump. Okay, now on next page. Make as many words from within the given words. Okay. So now we have second word, frowning. With this you're going to make words. चलो वर्ड्स बताओ, फ्राउनिंग से कौन कौन से वर्ड्स हम बना सकते हैं? ओके, विंग, इन. Okay, any other word? Win. Okay, so here you will write these words. Then blinking. With the word blinking, ब्लिंकिंग वर्ड से आपको बनाना है किंग. ओके, इन. एनी अदर वर्ड? You can jumble the letters also. Linking, okay. Blink, nice. Okay, now last one, wonderingly. Okay, wonder, bring, nice. Okay, so this one, match the picture with the words given below. ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है. दिस विल बी योर होमवर्क. ठीक है, ये सब आपको पिक्चर से मैच करने हैं. देन this one, look at the goats in the picture and write about them. Now we have 3 pictures. So you tell me about first picture. What you see in the first picture? Tell me in one line. There. 2 goats are there and
two goats are coming from opposite direction and they are on a which type of bridge is there? लकड़ी का. लकड़ी का, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? Wood. Wood. वुडन. Wood bridge. ओके. Wooden. Then second, in second picture, what you can see in second picture? What they are doing? Yeah, there. It is a. जिसको भी आंसर देना है वो सिर्फ अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर देगा. कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा. What they are doing? Two goats are fighting. Okay. Then next one. In the last picture, what happened? Goat breed first two goats. The goats are fell down on the water Okay. on the bridge. The goats are fighting. At the last, both the goats fell down in the water. Both the goats fell down in the water. Okay. So that all three sentences you will write here. And at the last, read these words aloud, paying attention to their spelling. Okay. If we read this word, we said I, then I. Week, week. In, no, no. The spelling is different, but the pronunciation is same. स्पेलिंग्स इनकी डिफरेंट है लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो वो सेम ही हम प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, इनका मीनिंग डिफरेंट है लेकिन जब हम इनको बोलते हैं तो हम सेम ही बोलते हैं. जैसे समझ लो, ये आई, आई मीन्स मैं. ठीक है, एंड आई मीन्स आँख. ओके, मीनिंग इज डिफरेंट but the pronunciation is same. This type of words are called. ओके, ये आपको ग्रामर में पढ़ाया जाएगा. ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ पर कि ये जो स्पेलिंग्स है, स्पेलिंग्स आर डिफरेंट बट द वर्ड्स आर सेम. ओके, एंड नाउ मेक सेंटेंस विथ ईच वर्ड बाय यूजिंग these words. ओके, नॉट, नॉट, ऑफ, इन सभी वर्ड्स को यूज करके हमें क्या करना है, सेंटेंसेस यहाँ पर बनाने हैं. तो we will use first one, I. By using I, comment any one sentence. Using this I, make any one sentence. Okay. Using this word I, make any one sentence.